pressure measurement. So pressure, what the definition of pressure? Yes. Yes, pressure, force per unit area. Okay. These all physical quantities are mostly interrelated. Pressure, force, interchangeably weight. Mostly जेके भी ना equipment होता है से interchangeably इस्तेमाल भी थींदा आहिनि. But when we say weight, pressure basically is developed in liquids mostly. Though pressure also developed in the solids, but here our most emphasis is on the pressure developed in the liquids. One thing you must keep in your mind, pressure is one of fundamental quantity which is used to transmit what? Yes, is a fundamental quantity in a liquids which is used to transmit what dash, what I am asking from you. What thing is going to be transmitted through the pressure? Yes, respond me. केड़ी शे ट्रांसमिट केड़ी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेशर जे ज़रिए ट्रांसमिट थींदी आहे? यस, ॿुधायो न, निंड पे आयो छा? सवाल लिखां थो. यस, ॿुधायो. यस, केरु ॿुधाईंदो? सुता पिया आहियो? फोर्स. फोर्स, फंडामेंटल फोर्स के ट्रांसमिट कंदा आहियो. फॉर एग्जांपल प्रेशर जेका आहे न मैकेनिकल में हुनजो वॾो रोल आहे. हाइड्रोलिक प्रेशर ब्रेक्स तव्हां ॿुधा आहिनि? ऑटोमोबाइल में जेके तव्हांजा प्रेशर ब्रेक्स लॻंदा आहिनि. अॼुकल्ह पहिरीं क्लच ब्रेक हूंदी न, पर अॼु जी उन जी जॻह ते छा थो थिए, तव्हांजा लिक्विड जो इस्तेमालु थिए, फ्लूइड. You are applying a force on the pedestal brake. Your force is to be transmitted where? At the wheel. So जॾहिं असां प्रेशर खे रुगो जस्ट हिकिड़ो इहो न इस्तेमालु कयूं त हिकिड़ो कंटेनर में आहे ऐं बॉइलर में आहे, उनजो प्रेशर वधे थो, बट we deem it a transmitting element that it transmits force from one area to another. And इहो फंडामेंटल एसेंस आहे मैकेनिकल में, डायनामिक्स में हुनजो इस्तेमालु वॾो उनजो रोल हूंदो आहे. So let me read this one. Pressure measurement can broadly be divided into the static pressure and the dynamic pressure. But here we consider only static pressure.
The static pressure is widely used in measurement of the pressure, liquid levels, rate flow, when a liquid is still or static. The static pressure is exerted by the height of liquid. कंहिं बि कंटेनर में आहे त जेतिरो उन में हाइट वधीक हूंदी ओतिरी उन में उन जो प्रेशर वधीक हूंदो. If pipe is full of the fluid in motion, it is considered the static pressure at the tapping at the water. टेप लॻल हूंदी आहे न. हाणे पाइप जॾहिं असां नलको खोलींदा आहियूं, टेप वाटर टेप खोलींदा आहियूं, त जेतिरी लेवल तव्हांजी पाइप जी टैंक जी मथे हूंदी त दैट प्रेशर इज डेवलप ऑन दैट टैप. एंड एट द एंड हाइट खां वठी जेको एंड पॉइंट हूंदी, लोएस्ट पॉइंट हूंदी, दैट इज डीम्ड टू बी द pressure, liquid pressure. Liquid pressure exerted by itself. So sometimes it is called the static pressure. So when it is required to measure the fluctuating pressure, खास करके प्रेशर इन आईसी इंजन में, आईसी इंजन में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होती है, कंटिन्यूअसली पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो देयर द प्रेशर, दिस pressure is continuously fluctuates. So but our topic is not related to the fluctuating or dynamic pressure, but we are only considering our scope up to the static pressure. In this case, a transducer which converts the pressure into the signal may be recorded is used. So in fluctuating, the sensor that records how much variation in pressure is to be carried out within a second of time. So now generally we range the pressure into three categories, and normally the unit that we used to measure is the bar. So if normal pressure ranges from the 1.013 bar to the 7,000 bar, this pressure normally we call it that it's a standard. It's a normal pressure. But the pressure is lower than this one, this limit, it will be called the low pressure. If its limits exceeding beyond this upper limit, that is called the high pressure. So accordingly, your all measurement device also can be divided accordingly. That whether you are using the normal pressure gauges, low pressure के लिए अलग होंगे, high pressure के लिए definitely may be quite different from the rest. Now, pressure measurement device, what conditions? Normally, there are 4 conditions under which the pressure measurement. Number 1 is the gauge pressure. That means the pressure basically. Let me start give you a brief intro about this one. Container may have certain liquid in it. Normally pressure is to be applied, this one, pressure is to be applied on this one. This pressure has been applied. Now this type of pressure normally that is applied is called the gauge pressure. But how can you differentiate, how can you extract from the absolute pressure from this one? Yes, this is, you are applying a pressure. For example, let me, okay. For example, a piston is there, I am placing a weight on this one. Okay.
A weight, a piston is there and a weight is to be applied on that one. Yes, this is called the gauge pressure. But when it becomes absolute pressure, this pressure is, let me write it again, it's a gauge pressure. I write it. Yes, is the gauge pressure. When it become a absolute pressure, this become absolute pressure because atmosphere also exert a force on that one. And hinate atmosphere we could exert the force. So whenever this atmosphere pressure is also added to that one, so that's mean the addition of atmospheric pressure. So it becomes what? It becomes now it becomes absolute pressure. This one. Okay. Now think in that differential pressure. Now, for example, if we are applying another, we are having, you can say, a pipe is inserted. Certain we are applying a pressure from other side. अब ये टैंक के नीचे एक हमने दूसरा लगा दिया कोई और पाइप, यहाँ से बॉटम में लगा दिया. अब यहाँ से एक और प्रेशर हमने लगा दिया इसके उल्टी साइड पे, ये प्रेशर आ गया दूसरा अप्लाइड प्रेशर. तो ये क्या हो गया? नाउ इट विल बिकम अ डिफरेंशियल प्रेशर. यहाँ पे कोई लगा दिया और प्रेशर, ये गेज प्रेशर, और यहाँ पे हमने लगा दिया कोई और प्रेशर आ गया, यहाँ पे इस पे लगा दिया, इट बिकम डिफरेंशियल प्रेशर. समटाइम्स अब चौथी है वैक्यूम प्रेशर. कुछ भी नहीं लगाते हम, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, ये अंदर वाला प्रेशर ज्यादा हो गया तो इट विल बिकम वैक्यूम प्रेशर. तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू रीड दिस वन, how it could be measured, what type of equipment we are using. Number one, for gauge pressure, as we have seen, this is a gauge pressure that we are applying, how it is to be measured. So the gauge consists of the metallic tube. पहले इस figure को look at this figure. The pressure is going to be applied from here. The pipe, for example, let me read. It's a pipe. It is there. For example, a pipe.
द पाइप फॉर एग्जांपल अ पाइप इज, ये पाइप से कोई लिक्विड गुजर रहा है, यहाँ से फ्लूइड इज फ्लोइंग, एनी फ्लूइड इज, कोई भी आपका फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रहा है। ये फ्लूइड इस तरफ भी पास्कल लॉ के तहत यहाँ से भी फ्लो करेगा और यहाँ पे भी फ्लो करेगा। अब क्या होगा नाउ, अब इसको समझने की कोशिश करो। द ट्यूब इज फिक्स्ड, द गेज कंसिस्ट ऑफ द मेटालिक ट्यूब अप्रोक्सीमेटली इलिप्टिकल इन क्रॉस साइज, ये आपका क्रॉस साइज में इलिप्टिकल होगा और ये क्या है, सी शेप में है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़वाया था। ये फ्लूइड यहाँ से, द ट्यूब इज फिक्स्ड एट वन एंड, इट्स वन एंड इज फिक्स्ड ओवर हियर which is open to accept, this is a fixed, sorry, this is a fixed which is open to accept the applied pressure। अब इसमें से ट्यूब में जब प्रेशर बढ़ेगा, but the free end at other end पे, ये free end है जो close है यहाँ पे, so when the pressure within the tube is increases, यहाँ से प्रेशर पाइप पे बढ़ेगा, tends to become round, ये क्या होगा, it will be try to unwound, पहले भी मैंने पढ़ाया। अब ये लीवरिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये पॉइंटर विल स्केल पे, आपको पॉइंटर पे आपको क्या लगेगा, आपको देखने में आएगा कि कितना प्रेशर, अगर प्रेशर कम होगा तो ये वापस आ जाएगा। इट वर्क्स लाइक दिस वन। इस तरह के गेजेस इस तरह लगे हुए थे सारे ये गेजेस। ये गेजेस ये लगे होते हैं, इस तरह ऊपर लगे हुए होते हैं। सो वेरी सिंपली गेज प्रेशर ये होते हैं, ठीक है। So thus the free end will to move and the motion will be proportional to the pressure difference between the inside and outside tube. The motion of free end may be magnified, इस तरह करेंगे यहाँ से, and transmitted to an indication of pointer and lever, rack and pinion, यहाँ पे lever and pinion लगा होगा, and quadrant arrangement, ये quadrant है, चौथा गियर लगा हुआ है। To alternate form of the Bourdon tube, helical tube and flat spiral tube. Bourdon tubes may normally use for measurement of the 500 meganewtons per meter square। तो इस तरह की चीजें आपको मिलेगी जब आप whenever you see this one, ये इस तरह का गेज बना होगा, यहाँ पे प्रेशर, इसके अंदर ये सारी चीजें होंगी, ये क्वाड्रेंट लगा हुआ है, ये गियरिंग मैकेनिज्म पॉइंटर के साथ लगा हुआ है, ये स्केल है आपका, ठीक है। ये एलिप्टिकल टाइप, लुक एट दिस ट्यूब इज बेसिकली इसका डाया जो है वो एलिप्टिकल होता है और खुद क्या होती है, सी शेप में, इट्स अ सी शेप। दूसरा ये एक ये होता है, दूसरा है डेड वेट फ्री एंड पिस्टन, इसको फिर समझे अगेन। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे अगेन वही प्रेशर, ये पाइप इसके साथ लगा होता है जिसका प्रेशर हमने मालूम करना है। ये पाइप चैनल जा रहा है, ये पाइप का चैनल यहाँ पे, जैसे मैंने ये कनेक्शन, जैसे वट एवर आई हैव शोन यू दिस कनेक्शन, दिस पाइप इज टू बी कनेक्टेड ओवर ऑन दिस साइड, यहाँ पे लगा होता है। अब इसका प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे लुक एट, वी आर हैविंग द व्हाट, पिस्टन, ये एक फ्री पिस्टन लगा हुआ है। द पिस्टन, द सिलेंडर इज देयर, this chamber is connected to the liquid whose pressure, for example कोई पाइप यहाँ से गुजर रहा है, उसका प्रेशर ज्यादा होगा, बढ़ेगा और ज्यादा होगा। So whenever pressure increases, what will be the effect on this piston? इस पे क्या, पिस्टन पे क्या इफेक्ट होगा, इसको पिस्टन को ऊपर धकेलेगा। अगर प्रेशर कम होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लगा दी, फॉर एग्जांपल हमने स्केल लगा दिया कि अब इनिशियली हम इन स्टैटिक जो प्रेशर हमारा इस टाइम पे चल रहा है, यहाँ पे हमने एक स्केलिंग लगा दी, कोई हमने मार्क कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने कोई मार्किंग कर दी यहाँ पे, अब ये नॉर्मल, अब इसकी ये गेज है, स्केल है, यहाँ पे ये अब फ्लोटिंग प्रेशर, जो भी नॉर्मल प्रेशर है यहाँ पे, अब प्रेशर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, पिस्टन को ऊपर उठाएगा।
ये इंडिकेशन पॉइंट है। अगर प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा, अब ये गेजिंग है, यहाँ पे हमने ऊपर कोई मास रख दिया, बैलेंसिंग मास रख दिया। तो अब इस बैलेंसिंग मास, जितना मास होगा, जितने मास को वो ऊपर उठाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, it will be indicated that how much pressure has been increased in that channel or in that pipe. So let me read. This device consists of an accurately machined piston, this one, for a known weight. Piston का weight हमें पता होगा, which is inserted into the closed fitting cylinder में लगा हुआ है, cylinder में लगा हुआ है। दोनों की हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम हो, जितना मास हम ऊपर रखेंगे, तो विल गेट दैट हाउ मच प्रेशर हैज बीन डेवलप्ड। A number of masses, known weights, are located at one end of the free piston and fluid pressure is applied. अब यहाँ पे हमने masses रख लिए हैं। अब यहाँ पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो मास को बैलेंस करेगा। बैलेंस इस हिसाब से करेगा, जितने मास रखेंगे वे बैलेंस करके इस स्केल पे लेके आएगा, तो उसका मतलब होगा इतना प्रेशर डेवलप हुआ। So until the inner force is developed to lift the piston weight combination. So when piston is floating freely within the cylinder, the piston is in equilibrium system. ये floating freely float कर रहा है, उसका मतलब है ये वाला प्रेशर और जो आपने यहाँ पे प्रेशर लगाया, दोनों they are equal. So by calculating the mass and the area, we can find that how much pressure has been increased. This equilibrium pressure will give the indication of the how much pressure has been increased in this chamber. So this is called a dead weight. Keep in your mind, previously it was a Gordon tube pressure gauge, it is a dead weight, free piston gauge. Heavy industries में बहुत इस्तेमाल होता है। Okay? जी सर। बाद दूसरी टाइप, ये हमारा था पहली टाइप गेज प्रेशर। Now we'll go for the differential pressure. डिफरेंशियल प्रेशर हमेशा दो तरफ से इस्तेमाल करने। फ्रॉम नेम इट्स क्लियर, इट इज गिव द डिफरेंस। सो मोस्ट पॉपुलर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग द डिफरेंस प्रेशर आर द मैनोमीटर। इसको हम बोलते हैं मैनोमीटर, जो आपने फ्लूइड में मैकेनिक्स में किए भी होंगे काफी। मैनोमीटर आर a passive instrument that gives the visual indication of the pressure values. डायरेक्ट नहीं होता। पैसिव का मतलब ये एक डायरेक्ट नहीं देता, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है। अब नाउ अगेन क्या है ये मैनोमीटर इज अ वेरी, बिफोर गोइंग टू रीड दिस वन होल पैराग्राफ, आई वुड लाइक टू टेक यू टुवर्ड्स द फिगर। यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाइड प्रेशर। थोड़ा मैं इसका पहले ये देखें, बिफोर गोइंग टू दिस वन, इसके बाद पहले इसकी थोड़ी एप्लीकेशन की तरफ मैं लेके आऊँ आपको किस तरह होता है। ये आपका यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है, ये वाला, ये प्रेशर, ये पाइप है जिसमें से आपका फ्लूइड गुजर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये यूट्यूब में आप देख रहे हो मैनोमीटर में क्या हो रहा है, जिस तरह ये प्रेशर इसका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी कोई गैस गुजर रही है, आपने यहाँ पे इस यू हैव इंसर्टेड, यहाँ पे आपने की मर्क्यूरी लगी, ये जो लिक्विड लगा हुआ है मर्क्यूरी का लगा हुआ है। अब ये गैस है, फॉर एग्जाम्पल सुई गैस है, नियॉन गैस है। अब व्हेन एवर द प्रेशर इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस, इसका प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पहले ये दोनों बराबर थे, अब ये मर्क्यूरी, इसका प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, ये मर्क्यूरी की लेवल इसको राइज कर ली इसने, तो द डिफरेंस लिक्विड लेवल, बेसिकली दे आर मेजर्ड इन द बाय द डिफरेंस ऑफ द लिक्विड लेवल। इस तरह भी इस्तेमाल होता है, या कभी कभी क्या लगाते हैं, यहाँ पे बोर्डन ट्यूब हमने पीछे लगा दी, यहाँ पे ये बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज लगा दिया। अब वो बोर्डन ट्यूब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये बोर्डन ट्यूब लगा दिया। अब क्या होगा, जितना प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बोर्डन ट्यूब पे इफेक्ट करेगा। कभी कभी इस तरह होता है, कभी कभी इनडायरेक्टली डिफरेंस के जरिए, लिक्विड लेवल के डिफरेंस के जरिए। तो इसके एंड यूजेज दो किस्म के होते हैं, आइदर यू आर यूजिंग द डिफरेंस लेवल और डायरेक्टली यू आर कनेक्टिंग दिस टुवर्ड द बोर्डन प्रेशर, दैट विल इंडिकेट हाउ मच प्रेशर हैज बीन इंक्रीज्ड। So did you got this idea that how it was? So now I'm coming to the paragraph. Yes, YouTube manometer is the most common form of manometer. Applied pressure causes the displacement of liquid inside the U-shaped. Applied pressure यहाँ पे आ गया,
ये वाला P1 इज अप्लाइड प्रेशर, और ये इसने क्या किया, पहले इनिशियली लेवल दोनों की ये बराबर थी, इनिशियल लेवल, दैट इज द इनिशियल लेवल, दोनों की लिक्विड यहाँ पे इस साइड पे भी इतना था और इस साइड पे। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, ये लेवल कम हो गई और यहाँ पे ये लेवल इसकी बढ़ के यहाँ पे आ गई, तो डिफरेंस कितना आ गया, H इज द डिफरेंस। So applied pressures causes the displacement of liquid in U shape. इसने liquid displacement किया. The output pressure reading P is made by observing the scale fixed in the difference. ये scale यहाँ पे scale लगा हुआ, पता चलेगा कि कितना ऊपर हुआ है। ये जिस तरह ये आप देख रहे हैं इंडिकेशन, यहाँ पे scale लगा, ये scale के साथ जुड़ा होता है। तो difference between H between the level of liquid in two limbs of the tube A and B due to the pressure difference. ये जो pressure difference develop हो रहा है because वो आपकी level liquid level. If higher pressure is applied to A की तरफ से higher pressure होगा and the lower pressure is B, the liquid will be forced down, that will the B rise. The action will be continued until the P1 is balanced by the sum of P2. P1 को pressure बढ़ता जाएगा, तब तक बढ़ता जाएगा जब तक ये बैलेंस होकर कोई स्टैटिक पोजीशन में नहीं आ जाए। So pressure due to the height of the liquid column between the two levels. So basically अब यहाँ पे एक ये तो आपका लगा हुआ है, again what the rho GH, ठीक है, रो क्या है, कौन सा लिक्विड आप इस्तेमाल कर, अब ये मेयरमेंट हाउ इट इज टू बी मेयर्ड, ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो किस तरह मेयर होगा, मास जो है, लिक्विड आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, मर्क्यूरी कर रहे हो, उसकी डेंसिटी है, या वाटर कर रहे हो, समथिंग ऑयल कोई कर रहे हो, और हाइट, द डिफरेंस इज हाइट इज देयर, जी द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू द दिस, जितनी हाइट हुई, हाइट कॉलम ऑफ हाइट, हमने पहले भी पढ़ा था कि स्टैटिक प्रेशर हमेशा हाइट के हिसाब से मेयर होता है। अब यहाँ से जो प्रेशर होगा वो उसकी हाइट के बराबर होगा, और डिपेंड्स अपॉन द व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड इज देयर, तो प्रेशर डिफरेंस जो डिफरेंस डेवलप हुआ दैट विल बी इक्वल टू दैट वन, रो GH1, ठीक है। मतलब ये हुआ कि नाउ हाउ कैन वी इंडिकेट दिस वन, इसका मतलब ये हुआ कि H जो हमारा इंडिकेट करता है, मैं अगर रीराइट करूं तो जिसे मैं आमूमी तौर हम इक्वेशंस में लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन द height, how the height could be measured by using the pressure difference. What the relation between height and pressure difference? Rho G दोनों constant हो गए, so height is indicating, so constant factor is the rho and G, gravitational constant और आपकी density भी constant है, so it will give you the relation between the height, ये height आपकी indicate करती है कि कितना pressure, इसको हम develop करेंगे for example किसके साथ, rho और G के साथ डिवाइड करेंगे तो we'll get this one, the pressure difference, इतना pressure, इतनी height जो है वो इतना pressure difference दे रही है। So एक तो ये चीज है, if limb B is open, अब यहाँ पे limb B जो है open to atmosphere, in this one P2 क्या होगा, P2 हो गया प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब यहाँ पे P1 जो एक तो समटाइम वी क्लोज, अगर ये क्लोज है P2 बोर्डन ट्यूब है तो वी यूज द P2, अगर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे P2 आ जाएगा एटमॉस्फेयर प्रेशर रो जी दैट वन, so equation will be like this one. So hence in this case the manometer is used to measure the gauge pressure.
अब हमने जब इसको बंद कर दिया यहाँ पे, तो ये YouTube मैनोमीटर आर टिपिकली यूज टू मेयर द गेज एंड डिफरेंट गेज प्रेशर भी मालूम कर सकते हैं और डिफरेंशियल। अगर हमने इसको बंद करके यहाँ पे लगा दिया गेज, तो ये गेज प्रेशर हो गया। अगर हमने इसको एटमॉस्फेयर प्रेशर पे खोल दिया तो इट विल बिकम अ डिफरेंशियल प्रेशर। तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। Look at now, there you can find in industry such type of so many type of this devices where YouTube manometers are to be used as a gauge pressure measurement, where the this dial is you can say the Borden tube is to be installed. It is used to measure the pressure natural gases में आप सुई गैस जहाँ पे होती है, आप देखते होंगे रास्तों पे सुई गैस की जब पाइप गुजरती हैं तो पाइप्स के बीच में ये लगे होते हैं। वहाँ पे देखा जाता है कि प्रेशर पाइप के अंदर, पाइप तो ज़मीन में दबा होता है लेकिन ये ट्यूब्स बाहर लगे होते हैं, तो इट विल शो दैट प्रेशर कितना जा रहा है वहाँ पे। इट इज़ यूज फॉर द मेयरिंग द कैलिब्रेशन, लीकेज के लिए इस्तेमाल होती है, टेस्टिंग के लिए। यूज फॉर मेयरिंग द लिक्विड लेवल। अब लीकेज के लिए किस तरह इस्तेमाल होगी? हाउ इट इज यूज फॉर लीकेज? अब यहाँ पे हमारा लीकेज के लिए इस्तेमाल इस तरह होगी कि फॉर एग्जाम्पल एक हमने यहाँ पे लगा दिया यूट्यूब फॉर यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा हमने ये पाइप से फ्लूइड फ्लो गुजर रहा है, कोई भी लिक्विड गुजर रहा है, ये आपके पाइप है, यहाँ से लिक्विड गुजर रहा है। अच्छा, लेट मी आस्क, अब यहाँ पे आपको दे रहा है 500, दो हमने लगा दिए, 500 बार आपको दे रहा है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है 490 बार प्रेशर। उसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज मीन? 10 बार यहाँ पे कुछ लीकेज है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो उसका मतलब है ये इस तरह कुछ डिस्टेंस पे लगा देते हैं, फिर चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेशर, यहाँ उसका मतलब है इसके बीच में, यहाँ के बीच के डिस्टेंस में समथिंग लीकेज है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो इस तरह ये प्रेशर लीकेज के लिए भी इस्तेमाल होता है, दैट ये इट इज यूज फॉर द लीक टेस्टिंग के लिए। ओके, देन industrial YouTube manometer. Now what the before going to read this one again, वही YouTube है लेकिन फ़र्क ये है कि इसका एक वाइडर जो है ट्यूब है, यहाँ से नैरोअर है, वन लिम्ब विद मच लार्जर डायामीटर देन द अदर, भाई वही है। अब यहाँ पे वो ये क्या करेगा, बोथ अब सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर जो है थोड़े से प्रेशर, अब इसके लिए ऊपर उठाने के लिए यहाँ पे इसको क्या होगा, हाई प्रेशर चाहिए होगा, तो इसका मतलब है कि ये इट इज़ यूज फॉर द हाई प्रेशर के लिए। और इसकी लिम्स जो अमूमी बनी होती हैं वो क्या बनी होती हैं, स्टील की बनी होती है, वो ग्लास ट्यूब की बनी होती है लिम्ब, ये स्टील की बनी होती है। अब यहाँ पे कोई भी पैसेज प्रेशर अप्लाई होगा, कोई पाइप गुजर रहा है, हाई प्रेशर पाइप गुजरा होगा, तभी जाके इसको ऊपर लेवल को ऊपर उठाएगा, बिकॉज ऑफ वाइडर लिम्ब। सो
ये दोनों में फ़र्क है कि यूट्यूब में आप देख रहे हो ये सिंपल है, लो प्रेशर में ही उठ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जीरो लेवल ये थी आपकी, अब ये इसको हाई प्रेशर होगा तब जाके थोड़ा उसकी लेवल ऊपर होगी। इसके लिए क्या होगा, ये बहुत ही कम में हो जाएगी। So a differential pressure is applied on the manometer. The lower pressure P2 यहाँ पे to wide limb and the higher pressure कहाँ पे होगा, ये इस पे। The following pressure is balanced. अब pressure अब ये balance हो रहा है। अब height equation P1 is applied and यहाँ पे जो pressure develop हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये applied pressure यहाँ पे, और the height जितनी अपनी इसने ये height raise की है, total height, और ये हाइट कितने की, अगर इसको हमने इनिशियल डिस्टेंस ये था उसका, जीरो लेवल ये थी, और लिक्विड कहाँ पे उठा, ये लिक्विड और ये लिक्विड दोनों ये ब्लू में ये बराबर है। सो H इज द टोटल डिफरेंस इन मीटर, इज द डिफरेंस लेवल इन द स्मॉल डायामीटर लिम्ब। ये H जो है वो ये H क्या है, इसको कितना कंप्रेस किया, और ये लिक्विड कितना ऊपर उठा हुआ, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ दे विल बी इक्वल। ये लिक्विड की क्वांटिटी और ये जो ब्लू शेड में दिया है दे विल बी द सेम। सो D इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ द लार्जर, ये D बेसिकली डिफरेंस है इन दोनों में कितना उठा। सो वेयर H इज द टोटल डिफरेंस level, H difference between the level of the smaller diameter limb and the zero level, and D is the difference between the level of the larger diameter ये वाला limb and the zero level. The volume of liquid narrow limb must be equal to the with the passed into the limb wide limb. ये वॉल्यूम उसका दोनों का सेम होगा। अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, एरिया इसकी है A1 और हाइट कितनी है इसकी, हाइट इसकी है H, ये H हाइट है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दैट वन, और इसका, और ये किस वॉल्यूम के बराबर होगा, इस वॉल्यूम के, एरिया एंड मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्प्लेसमेंट। सो आपकी हाइट जो है ये दैट विल बी, इससे हम अगर इसको हम रीड्रा करें तो H इज इक्वल टू A2 D और A1। तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन H में ये डालें, H में ये डाल दिया हमने, यहाँ पे H की वैल्यू यहाँ पे निकाल के। So look at this one, your pressure difference equation will be equal to this one. That's mean now your pressure difference depends upon what? P1, P2, D is directly proportional to that one, rho constant, G constant, 1 constant. Your this displacement depends upon what? The ratio of this areas. जितनी ये रेशो ज्यादा होगा उतनी उसकी हाइट, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो यूट्यूब मैनोमीटर हो जाएगा। तो दिस डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ डिफरेंस दिस वन, जितनी ये वाइडर होगी उतनी उसकी आपकी एरिया, जितनी इसकी एरिया ज़्यादा होगी उतना डिस्प्लेसमेंट कम होगा, जितनी इसकी एरिया कम होगी, A2 की कम होगी, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। सो इन मैनी इंडस्ट्रियल मैनोमीटर्स मेटल फ्लोट इज इंक्लूडेड टू द वाइड चेम्बर। कभी कभी यहाँ पे मेटल फ्लोट लगा दिया जाता है, वो फ्लोट जो है हाइट, द फ्लोट बीइंग कनेक्टेड टू द वायर लिंकिंग मैकेनिज्म, पॉइंटर लगा दिया, पेन रिकॉर्डर यहाँ पे मैंने देखा लगा दिया, यहाँ पे कोई फ्लोटर लगा दिया, और फ्लोट जो है किसी पॉइंटर या रिकॉर्डर पे आ गया, तो जितना जितना लिक्विड प्रेशर बढ़ेगा वो पॉइंटर और जो आपका है स्केल पे वो चीज़ आती जाएगी। दूसरा एंड जो है यहाँ पे कोई फ्लोटर लगा दिया, इस तरह कोई बार रार लगा दी। फॉर एग्जाम्पल लेट मी थोड़ा सा मैं ड्रा करके दिखाऊं, का कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने फ्लोट लगा दिया, यहाँ पे कोई बाल लगा दिया और बाल को कनेक्ट कर दिया किसी पॉइंटर मैकेनिज्म के साथ। सिंपली जस्ट रफ आइडिया में आपको दे रहा हूँ, ये पॉइंटर है, ठीक है, ये आपका फ्लोट लग गया। अब फ्लोट ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा,
ये रॉड ऊपर नीचे होगी, किसी मैकेनिज्म के साथ लगा होगा ये वाला, फिर यहाँ पे कोई रोटेशन लगा होगा, कोई भी लीवरिंग मैकेनिज्म हो, तो क्या होगा, ये पॉइंटर विल इंडिकेट। तो फ्लूइड की मूवमेंट जो है वो आपको कभी कभी व्हाट डज मीन कि इन मेनी इंडस्ट्रीज मैनोमीटर अ फ्लोट मेटल, ये फ्लोट मेटल लगा दिया, इज इंक्लूडेड इन द वाइट चेंबर, द फ्लोट इज बीइंग कनेक्टेड, लिंकिंग मैकेनिज्म होगा, कोई पॉइंटर लगा होगा, तो फिर उसके साथ वो आपको लेवल बताएगा, उसका मतलब है वो प्रेशर डिफरेंस आपको बताएगा। उसके बाद है सिस्टर्न मैनोमीटर। सिस्टर्न मैनोमीटर जस्ट रिवर्स। अब अप्लाइड प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, अब चेंबर ये हो गया, ये वाइडर चेंबर हो गया और ये आपका नैरो चेंबर हो गया। अप्लाइड प्रेशर प्रीवियसली इसमें क्या हो रहा था, अब दोनों में फर्क ये यहाँ पे देखो, ये आपका इंडस्ट्रियल यूटिलिटी में अप्लाइड प्रेशर कहाँ पे आ रहा था, नैरो में। अब यहाँ पे क्या है, अप्लाइड प्रेशर वाइडर में आ रहा है और आउटपुट प्रेशर आपको यहाँ से मिल रहा है। तो दिस इज सम रिवर्स। Cistern manometer working instrument is not affected. Okay, the working of above instrument is not affected if the narrow tube were inserted directly into the tube wider. Narrow tube हमने यहाँ पे लगा दी. If difference pressure P12 is applied on the manometer, अब ये फर्क ये हो गया कि आपका वॉल्यूम जितना जितना ये कंप्रेस करेगा उतना ये ज़्यादा उठेगा। Similarly एरिया, ये एरिया अब क्या हो रही है, H is the total difference, total height। यहाँ पे वॉल्यूम पहले इनिशियली यहाँ पे था, अब यहाँ पे जब प्रेशर इसको लगा तो क्या होगा, वॉल्यूम डिप्रेस हुआ और वॉल्यूम यहाँ से उठ गया ऊपर, इनिशियल से पहले यहाँ पे था ये ऊपर उठ गया। अब ये हाइट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट वन, प्रीवियस में हाइट कितनी थी, ये बहुत कम थी, अब ये इट इज़ मोर सेंसिटिव, अब ये हाइट बहुत थोड़ा से प्रेशर में ज़्यादा हाइट आ गई। तो डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस अगेन इट्स अ रो जी एच प्लस डी, ये हाइट टोटल कितनी और ये डिफरेंस कितना आया दोनों का। अब जो वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम लिक्विड ये यहाँ पे जो डिस्प्लेस हुआ और ये वाला वॉल्यूम डिस्प्लेस, दे विल बी द सेम। दिस वन, दिस वॉल्यूम इज लिक्विड इज दैट वन, इसकी एरिया है A1 और इस ये वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ D, तो दिस इज द वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम कितना हुआ, एरिया ऑफ दिस लिम्ब एंड मल्टीप्लाई बाय, अब इन दोनों का हम रिलेशन निकालेंगे तो D इज इक्वल टू, यहाँ से D इज इक्वल टू A2 अपान A2 अपान 1 A1 मल्टीप्लाई बाय H। अब इसको हमने यहाँ पे D में यहाँ पे ये डाल दी इक्वेशन, तो फाइनली द इक्वेशन वी गॉट अगेन इट इज डिपेंडेंट, अगेन ये भी डिपेंड करता है किस पे, एरियाज पे, एरियाज का डिफरेंस कितना है उसमें, और इसमें फर्क क्या है, ये रेसिप्रोकल है, ये डायरेक्टली यहाँ पे ये नीचे आ गया, मतलब इट्स मोर सेंसिटिव हो गया, फ्रैक्शन से ऊपर जाएगा। सो इफ द वैल्यू ऑफ A2 A1 इज सो स्मॉल, जितनी कम होगी इट मे बी निगलेक्टेड। इन प्रैक्टिस सिस्टर्न मैनोमीटर A1 इज अ वाइड लिम्ब, A1 जो है वाइड लिम्ब है, is made of large compared to the narrow tube, drop level D from the zero level to the cistern is negligible। इस तरह की ये आपको चीज मिलेगी प्रैक्टिकली। यूट्यूब मैनोमीटर है, ये वेल मैनोमीटर, बहुत सारी ये क्या होती है, ये कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, इसकी एप्लीकेशन नॉर्मली होती है जो गैस के अंडर वो ग्राउंड जो गैस के प्रेशर कुएं निकलते हैं ना, वहाँ पे वो प्रेशर लगाते हैं वेल के अंदर, तो ये ऊपर आपका लिक्विड उठ जाता है, फिर पता चलता है कि इसमें हाउ मच प्रेशर इसको चाहिए ऊपर उठाने के लिए। वेंटेड, जो ऊपर वेंट लगी होती है, इसको नॉर्मली बोलते हैं वेल मैनोमीटर। उसके बाद फाइनली ये करके फिर छोड़ते हैं इंक्लाइंड मैनोमीटर। अब यहाँ पे क्या है, बजाय कि ये यूट्यूब वर्टिकली, ये वही है आपका यूट्यूब मैनोमीटर, बट ये instead of it's vertically upward, going to be upward, it's inclined at a certain angle।
special development of U-tube manometer is inclined U-tube manometer. The advantage of this device is it gives an increased length. अब जिसको increase जितनी ये इसकी फॉर एग्जांपल एंगल जो है कम होगी तो उतनी ज़्यादा उसकी हाइट आप ज़्यादा कर सकते हो. Length scale was used to measure difference pressure. One limb is consists of the glass tube inclined at an angle to the horizontal or vertical, and other wide chamber. दूसरी wide chamber से connected है. अब going to the equation. Pressure difference क्या है? Pressure difference again depends upon the what rho g. पहले ये देखें क्या H1 क्या है? This shaded line initially. अब फिर मैं आपको थोड़ा इनिशियली आपका क्या था, यहाँ पे लिक्विड की लेवल थी ये वाली. अब लिक्विड यहाँ पे ले थी, अब प्रेशर हुआ तो क्या होगा, ये प्रेशर इज अप्लाइड. अब लिक्विड कहाँ पे, यहाँ पे आ गया. और इनिशियली प्रेशर यू लुक एट इनिशियली, अगर मैं इसको यहाँ ट्यूब तक लेके जाऊं इस प्रेशर को, अब मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो ये लिक्विड आ गया यहाँ पे. लेकिन इस तरफ क्या होगा, इस तरफ लिक्विड क्या बढ़ेगा, ऊपर बढ़ जाएगा. ये लिक्विड यहाँ पे आ गया और वहां पे लिक्विड की लेवल थी ये वाली. अब जब मैंने प्रेशर लगा दिया तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड आ गया यहाँ पे. ये जो लिक्विड कम हुआ इतना, यहाँ पे लिक्विड बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक. तो लुक एट दिस वन. अब पहले ये डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे जो है H1 है, ये कितना दबा H1 और हाइट कितनी हुई H. सो डिड यू गॉट इट. बट अब ये हाइट H जो आपकी है ये H1 हो गया, लेकिन ये H1 तो वर्टिकली डाउन हो गया, लेकिन ये जो H है आपका वो क्या हो रहा है, इट इज इंक्लाइंड. अब ये आपका बन गया ट्रायंगल. अब मैं आपसे पूछूं ये जो है d sin थीटा किस तरह हुआ. तो अब ये ट्रायंगल हो गया ना, ये ट्रायंगल. ये हो गई इसकी थीटा अल्फा. ये जो H आपकी H किसके बराबर होगी, d sin थीटा. ये थी d sin थीटा. H ये हाइट आपकी कितनी ऊपर हुई, H1 प्लस H. लेकिन H इज इक्वल टू द, हमें क्योंकि ये निकालना है लिक्विड की, लिक्विड जो है वो इंक्लाइंड ऊपर हो रहा है, तो H इज इक्वल टू d sin अल्फा. एंगल जितनी एंगल, सो जस्ट पुटिंग दिस वन इज इक्वल टू दैट वन. अब दोनों को हमने किया ये बराबर, तो H1 हमारी हो गई A1 अपान A2 और H हो गई आपकी इक्वल टू द d sin थीटा. पुटिंग दीज वैल्यूज, H1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने डाल दी, A1 A2 और D, और d sin थीटा इज देयर. अब इनको मैंने जब सॉल्व किया तो प्रेशर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द योर D इज डिस्प्लेसमेंट. ये जो D आपका हो रहा है वो प्रेशर डिफरेंस बता रहा है, प्रोवाइडेड योर रो कांस्टेंट, G कांस्टेंट. अब ये डिपेंड करता है किस पे, न फकत इस पे कि इनके दोनों के रेशो क्या है एरियाज का, और एंगल कितनी है, ये एंगल. So if the value of
A2 and small, it may be neglected. अब both इन दोनों में मतलब फर्क ही कम है, दोनों तकरीबन बराबर हो रही, तो U2 मैनोमीटर हो जाएगा। तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे तो फाइनली आपका ये आ जाएगा। So this is somehow the inclined manometer. Any question? ठीक है, जी सर। ठीक है, अटेंडेंस डाउनलोड किया। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।